آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں سلام ہو. ہاللویہ. پریز گاڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ مل کر مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 12واں باب اور 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. چیپٹر نمبر 12 ہے اور 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بد روح تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بازبول کی مدد سے مرد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہاللویہ. ہاللویہ. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. پریز گاڈ. اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے بڑے اچھے وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، اور آج پھر ہم یہاں پر جمع ہیں اور اپنے خداوند کی بندگی کر رہے ہیں. آمین. سو جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے بائبل مقدس میں، جو معجزہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کیا ہے، بہت سارے دوسرے معجزات کی طرح یہ بھی مشہور واقعہ ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ اس وقت لوگ ایک ایسے شخص کو یسوع مسیح کے پاس لائے ہیں جو اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے. یعنی نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے. اور اس سے پہلے اگر پیچھے ہم پڑھے 15ویں آیت میں تو لکھا یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا. اس نے بہت سارے لوگوں کو اچھا کیا. اور اس کے بعد پھر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ایسا شخص یسوع مسیح کے پاس لایا گیا ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے. دیکھا لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بد روح تھی، اور غالباً اس بری روح نے ہی اسے اندھا اور گونگا کر رکھا تھا. اور ہم یسایہ کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے وہ قیدیوں کو رہائی دے، اندھوں کو بینائی دے، اور جو پسے ہوئے ہیں گناہوں میں ہیں انہیں گناہوں سے رہائی دے. اور اگر اسی مقدس متی کی انجیل کا 11واں باب آپ دیکھتے ہیں، جب یوحنا استباغی قید خانے میں ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنے کچھ لوگ یسوع کے پاس روانہ کی، وہ قید میں، اور یسوع سے کہتا ہے، اپنے قاصدوں کے وسیلے سے پوچھتا ہے کہ اسے پوچھو کہ آنے والا تو ہے یا کسی اور کی راہ دیکھے. تو وہاں پر بھی لکھا ہے یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو، یعنی وہ کام جو میں کرتا ہوں، جا کے بتاؤ اسے. کہتے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے جو ہے وہ زندہ کیے جاتے ہیں. آمین. جا کے اسے بتاؤ. یسوع نے اور کچھ نہیں کہا، اس نے کہا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یا دیکھتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں. یسوع نے کہا جا کر سے بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ جائے گا کہ آنے والا واقعی میں ہی، کیونکہ یہ سب کچھ میرے ہی بارے میں لکھا ہوا. جیسے میں یسایہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ یسایہ نبی نے یسوع مسیح کے بارے میں پیشین کو کی، اور یہ ساری باتیں وہاں پر لکھی.
यीशु ने जैसे कहा 61वें बाब में कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं कैदियों को रिहाई दूं, तसल्ली दूं। ये सारी बातें यीशु ने कहा जाकर बस इतना कह दो जो देख रहे। तो यूहन्ना खुद ही समझ जाएगा कि ये सारी बातें मिसाया मौत मसीह के बारे में ही लिखी हुई है कि वो जब आएगा तो ये सारे काम वो करे। जब तुम बताओगे तो वो समझ जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एक शख्स यीशु मसीह के पास लाया गया और वो अंधा है और वो गूंगा है, और आगे ये भी लिखा है कि उसमें बदरूह थी। और ये वाज़ेह है, ये साफ है कि उस बदरूह की वजह से, उस बुरी रूह की वजह से वो शख्स अंधा है, वो शख्स गूंगा है। यानी उसी बुरी रूह ने उसे अंधा भी बनाया हुआ है, अंधा बनाकर रखा हुआ है और गूंगा भी कर रखा। और कई और हवाले बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं कि बुरी रूहें जब इंसान पर काबिज होती है तो कई बीमारियां पैदा कर देती है। जैसे मशहूर हवाला, जो औरत 18 वर्ष से कुबड़ी है, जिसका जिक्र अनाजील में मिलता है, जिसको यीशु मसीह ने शिफा दी। और जब एतराज किया गया क्योंकि वो सब्बत का दिन था, तो यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें जवाब दिया कि अब्राहम की एक बेटी जो आजाद हुई है, जिसे 18 वर्ष से शैतान ने कैद कर रखा था। तो जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो ये बात वाज़ेह होती है कि शैतान ही ने उसे कुबड़ा कर रखा था। ऐसे यहां पर लिखा है कि उस शख्स में बदरूह थी, यानी उस शख्स को बदरूह ने अंधा और गूंगा कर रखा था। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक बड़े मकसद के लिए जमीन पर भेजे गए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को मसा किया गया, मसीह यानी मसा शुदा, ताकि वो कैदियों को रिहाई दे, ताकि वो अंधों को बेनाई दे, ताकि वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करे। मौजज़ात की कुदरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे वो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और हर तरह की शिफा यीशु मसीह जारी करता है। अंधों को यीशु मसीह शिफा देता है, गूंगों को खुदावंद यीशु मसीह शिफा देता है, बहरों को वो सुनने की ताकत देता है, गूंगों को वो बोलने की ताकत और कुव्वत देता है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में से कई हवाले हमें मिलते हैं। ऐसे यहां पर लिखा है शख्स लाया गया है और वो अंधा है और गूंगा है, वो अंधा है। और मरकज की इंजील के 8वें बाब में 8:22 भी देखे, वहां पर भी लिखा हुआ 8:22, मरकज की इंजील 8वें बाब की 22वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन फिर वो बैत सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। किसे लाए हैं जी? एक अंधे को। A person who's blind, एक ऐसा शख्स वहां पर भी यीशु मसीह के पास लाया गया है जो अंधा है, जो देख नहीं सकता। और अगर मरकज की इंजील के 10वें बाब को हम देखें 46वीं आयत से, तो वहां पर भी एक अंधे शख्स का जिक्र मिलता है, अंधा फकीर। आप देख सकते हैं वहां पर मरकज की इंजील 10वां बाब, जिसके बारे में लिखा है कि एक अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ और यीशु मसीह वहां से जा रहे थे और वो लोगों से पूछ रहा है कि यहां पर क्या हो रहा। और बाद में उसे यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने उसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा, यही कि मैं बीमार हो जाऊं। मरकस यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि अंधे और गूंगे को यीशु मसीह के पास लाया गया। फिलहाल हम अंधे पर बात कर रहे हैं। मरकस की इंजील के 8वें बाब का हवाला मैंने आपको दिया है 8:22, वहां पर भी लोग एक अंधे को उसके पास लाए।
10वें बाब का हवाला मैंने आपको दिया है, मरकज की इंजील का, कि एक अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ और यूहन्ना की इंजील का 9वां बाब, वहां पर एक जन्म के अंधे का जिक्र मिलता, उसे भी यीशु मसीह ने शिफा दी। वो शख्स जो मरकज की इंजील के 8वें बाब में इसका जिक्र में पड़ा, वो इसलिए यीशु मसीह के पास लाया गया ताकि वो उसे छू ले और वो शिफा पाए। और वहां पर आगे नीचे लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने उसे छुआ है। यीशु मसीह ने वहां पर लिखा है कि उसकी आंखों पर थूका, और वहां जब उसने छुआ है, थूका है, हाथ लगाकर दुआ की है, टच किया है, तो नीचे वहां पर लिखा है कि वो शिफा पा गया है। हाँ, अंधे को यीशु मसीह के पास लाया गया, और उसे लाने का पर्पस, उसे लाने का मकसद ये है कि वो उसे छू ले और वो शिफा पाए। और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उसे छू लिया, और जब उसने उसे छू लिया है तो उसकी आंखें जो बंद थी, उसकी आंखें जिनमें रोशनी नहीं थी, उसकी आंखें, यानी जो शख्स अंधा है, जब यीशु मसीह ने छू लिया है तो वहां पर लिखा है कि वो बीना हो गया है, और कहता है कि हाँ, अब मैं हर एक चीज को साफ साफ देख सकता हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने छू लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा जारी कर दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बीमारी को, उस कमजोरी को काटा है, खत्म किया है, और वो चली गई है, और वो बीना हो गया है, उसकी आंखों में रोशनी आ गई है, और वो देखने लगा। हालेलुया, वो देखने लगा। और अंधा फकीर जो राह के किनारे बैठा है, उसे भी खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है, और वहां पर भी लिखा है कि वो भी देखने लगा। और जिस जन्म के अंधे की बात मैं कर रहा हूं, यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब, उसके बारे में बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस होती। फरीसी और दीगर लोग इस पर बड़ी तफ्तीश करते हैं, यहूदी, कि क्या ये वही शख्स है जो अंधा पैदा हुआ था? क्या ये वही है जो भीख मांगा करता था, या क्या ये उसका कोई हम शक्ल है? लेकिन वहां पर लिखा है कि जब उसे पूछा गया क्या तू वही है, तो उसने जवाब दिया कि मैं वही हूं। उसे पूछने लगे कि तेरे साथ क्या ऐसा हो गया है कि तू देखने लगा? और उसने कहा एक शख्स जिसका नाम यीशु है, उसने मुझे शिफा दी है। आमीन। एक शख्स जिसका नाम यीशु है, उसने मुझे शिफा दी है। जब उसे पूछा गया है क्या तू वही है, उसने कहा हाँ, मैं वही हूं जो अंधा ही पैदा हुआ था। लेकिन एक शख्स जिसका नाम यीशु है, जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो उसने मुझे शिफा दी। हाँ, वो शख्स जो यीशु है, उसके अंदर ऐसी पावर है कि उसने मेरे उस अंधेपन को, जो पैदाशी था, हाँ मैं जन्म करता था, लेकिन यीशु ने मुझे शिफा दी है। यीशु ने उस अंधेपन को खत्म किया है, क्योंकि जीसस के अंदर, क्योंकि मसीह के अंदर, यीशु के अंदर वो कुव्वत और पावर है जो पैदाशी अंधे को बीना कर सकता है, शिफा दे सकता है। क्योंकि उसके बारे में लिखा है, वो अपने मुंह से ये फरमाता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, इसलिए बंदों को शिफा दे सकता है। अपने सिर्फ बंदों को नहीं, अपने बंदे पैदा हुए हैं उन्हें भी वो बीना कर सकता है। वो कह रहा है एक शख्स जिसका नाम यीशु है, हाँ मैं वही हूं जो अंधा पैदा हुआ था, लेकिन एक शख्स जिसका नाम यीशु है, उसने मुझे शिफा दी है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह, यीशु का मतलब निजात देता है, और मसीह का मतलब है मसा किया गया। उसे मसा इसीलिए खुदा ने किया ताकि वो कैदियों को रिहा करे, अंधों को भी ना करे, मुर्दों को जिलाए, मुर्दों को जिंदा करे, कोड़ियों को पाक और साफ करे,
माशी तौर पर नकाइस हैं, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो टुंडे हैं, उसे इसलिए मसा किया गया, उसे इसलिए एम्पावर किया गया ताकि वो इन सारी बीमारियों से लोगों को रिहाई दे। जैसे ऊपर मैंने पढ़ा 15वीं आयत में पहले देखा बहुत सारे लोग वहां पर थे, लेकिन उसने उन सबको अच्छा कर दिया। 15वीं आयत इसी चैप्टर में उसने उन सबको अच्छा कर दी, सबको। और सब में पता नहीं मुख्तलिफ बीमारियां ही होंगी, सब में एक जैसी बीमारी तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबको अच्छा कर दिया। उसके अंदर वो कुव्वत है कि वो हर तरह की बीमारी को खत्म कर सकता है। यहां पर एक अंधे गूंगे को लाए हैं जिसमें बदरू थी, उसने उसे अच्छा कर दिया है। चुनाचे आगे लिखा वो गूंगा बोलने और देखने लगा। पहले ना वो देख सकता है ना वो बोल सकता है, क्योंकि बुरी रूह ने उसकी आंखों की रोशनी बंद कर रखी है। बुरी रूह ने उसकी जुबान को कंट्रोल कर रखा है। He can't speak, वो बोल नहीं सकता। और मरकसी की जी उसका 7वां बाब देखिए मेरे साथ, 37वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। जैसे हमने अंधों की बात की है, गूंगे का भी एक हवाला मैं आपके सामने रखता हूं, और भी हवाले हैं लेकिन एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं। अंधों के बारे में हमने 3-4 हवाले देखे हैं। 7:37 देखें, यहां पर लिखा है और यहां पर भी यीशु मसीह ने ऊपर एक शख्स को शिफा दी, और ये शख्स जिसे यीशु मसीह ने शिफा दी है ना, 35वीं आयत में लिखा है और उसके कान खुल गए, जिस शख्स को शिफा दी। 37वीं आयत कैसे पढ़ूंगा मैं गूंगों के बारे में, बहरों के बारे में, लेकिन ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि इस शख्स के अंदर भी 2-3 मसले हैं। 35वीं आयत में लिखा है और उसके कान खुल गए, वो सुन नहीं सकता था, और उसकी जुबान की गिरा खुल गई, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। ठीक है, और ऊपर बल्कि ऊपर लिखा है एक बहरे को जो हकला भी था, बहरा था यानी सुन नहीं सकता था, हकला था। अगर बोलता भी है वो साफ नहीं बोलता। लेकिन 37वीं आयत देखिए, हमारे जो हवाले से हमने लेनी है, कोट करनी है, लिखा है जब उसने यीशु ने शिफा दी है, लोगों ने क्या कहा है, और उन्होंने निहायत ही हैरान होकर कहा जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। और आगे लिखा है वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। आमीन। और वहां पर हमारा जो मरकजी वाला है वो एक अंधे गूंगे को लाए, और यहाँ पर जिस शख्स को यीशु ने शिफा दी है वो बहरा है, और सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। जब लोगों ने ये मोर्चा देखा है तो लोग कह रहे हैं कि इसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। हाँ, वो बहरे लोग जो सुन नहीं सकते, कहते हैं उन्हें सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जीसस के अंदर है, क्राइस्ट के अंदर है, और किसी के अंदर नहीं है। और ऐसे मोर्जात जो यीशु मसीह ने किए और आज भी जो करता है वो किसी ने नहीं किए। हैरान कुन करने वाली बातें, जहां जहां वो अजीब काम करता है, जहां जहां वो बड़े बड़े काम करता है, जहां जहां वो अपनी कुदरत को, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, वहां ही लोग जो हैं हम पढ़ते हैं कि हैरान होते हैं उसके बड़े बड़े कामों से। काना गलील में उसने पानी से मैं को बनाया और लोगों की अकल को उसने तंग किया है। उसने अंधों को बड़े अजीब तरीके से शिफाएं देकर लोगों की अकलों को हैरान किया है। उसने अजीब काम किए, उसने तूफानों को रोक कर लोगों को हैरान किया। और फिर लोग कहते थे कि ये कौन है जिसका हुक्म हवा और पानी भी सुनते और मानते हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये शख्स कोई खास नबी है, ये शख्स कोई खास ही है जिसके कलाम के अंदर इख्तियार है। लिखा है कि वो उनके फरीसियों की तरह गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि जो कुछ कहता है वो बड़े इख्तियार के साथ कहता है, और जो करता है उसके अंदर इख्तियार जो है वो नजर आता। उसकी बातों में इख्तियार है। जो तूफान से कहता है थम जा तो थम जाता है,
जो बदरूहों से कहता है निकलो तो वो निकल जाती है, गूंगे और बहरेपन को वो डांटता है तो खत्म हो जाते हैं। इवन लिखा है कि मुर्दों को वो आवाज देता है, वो कहता है कि उठ खड़े हो जाओ, उठ बैठो, तो मुर्दे जो हैं वो उठ बैठते हैं। जैसे लाजर को उसने कब्र में से आवाज दी है, जैसे नाइन शहर की बेवा का बेटा है, वहां पर लिखा है कि लोग जनाजा लेकर जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, और यीशु मसीह ने से छुआ, कहा क्या जवान मैं तुझे कहता हूं कि उठ, तो लिखा है वो उठ बैठा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह छू लेता है तो अजीब काम होते हैं। वहां पर लिखा है मरकस 8वें बाब में, जो वाला आपने पढ़ा, लिखा वो लाया गया है ताकि वो उसे छू ले, वो उसे छू ले और वो शिफा पाए। हाँ, यीशु मसीह के छूने के अंदर कुछ खास है। वो अंधों को छूता है तो अंधों की रोशनी जो है वो वापस आ जाती है। वो गूंगों को, पैरों को छू लेता है तो वो हील हो जाते हैं, वो शिफा पाते हैं। वो कोड़ियों को छू लेता है तो कोड़ चलता रहता है, वो पाक और साफ हो जाते हैं। वो मुर्दों को छूकर कहता है उठ जाओ तो उठ जाते हैं। No one can do that. कोई और ऐसा नहीं कर सकता। ये कुव्वत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है। और हमने पढ़ा है क्यों यीशु मसीह जो है वो गूंगों को बोलने की ताकत देता है, वो बहरों को सुनने की ताकत देता है। और यहाँ पर जो अंधा और गूंगा लाया गया है, इसमें बदरू है, लिखा उसने उसे अच्छा कर दिया है, चुनाचे वो गूंगा बोलने लगा है, और वो जो पहले अंधा था वो देखने लगा है, वो देखने लगा है। और जब इतने बड़े बड़े काम पब्लिकली होंगे तो लोग कैसे हैरान ना होंगे। जब लोगों के रूबरू जन्म के अंधे को शिफा मिलेगी, जो लोगों के सामने बैठकर भीख मांगता है तो लोग कैसे तंग ना होंगे। जब हजारों के सामने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करेगा तो लोग कैसे हैरान ना होंगे। वो हैरान करने वाले काम करता है। और फिर जब यहाँ पर गूंगे की बात है, अंधे की बात है, हाँ बेशक यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है। वो गूंगों को शिफाएं देता है, वो अंधों को शिफाएं देता है, बल्कि हर तरह की बीमारी को वो दूर करता है, वो खत्म करता है। और अगर इसका दूसरा पहलू देखें, गूंगा बोलने लगा है और देखने लगा है। शिफा देने के साथ साथ, जिस्मानी शिफा देने के साथ साथ यीशु मसीह लोगों को रूहानी तौर पर भी बीना करता है। जो रूहानी तौर पर अंधे होते हैं, उनकी ज़ाहिरी आंखें देखती है लेकिन रूहानी आंखें बंद होती हैं। यीशु मसीह जब उन्हें भी छू लेता है तो उनकी रूहानी आंखें जो है वो खुल जाती है। जो रूहानी तौर पर गूंगे हैं, यीशु मसीह जब उन्हें छू लेता है तो उनका रूहानी गूंगापन खत्म हो जाता है। जब कोई रूहानी तौर पर गूंगा होता है, जब कोई रूहानी तौर पर अंधा होता है, हाँ रूहानी तौर पर गूंगा शख्स यूं तो बोलता है लेकिन उसकी सारी बातें, उनका ताल्लुक दुनिया के साथ होता है। लेकिन जब यीशु मसीह रूहानी गूंगेपन को खत्म कर देता है, जब गूंगापन खत्म हो जाता है, ऐसा शख्स जब रूहानी जुबान बोलने लगता है, रूहानी मुर्दगी जब आउट हो जाती है, निकल जाती है, तो फिर ऐसे शख्स के अंदर से खुदा का कलाम निकलता है, दुआएं निकलती है, प्रेयर निकलती है, खुदा के बेटे की बातें उसके मुंह से निकलती है। क्योंकि पहले वो रूहानी तौर पर गूंगा था, लेकिन अब यीशु ने छू लिया है, इसलिए वो बोलने लगा है। अब कलाम जारी होता है, अब हीलिंग जारी होती है, और जो कुछ अब वो कहता है, बोलता है, उन सारी बातों का ताल्लुक अब यीशु के साथ है, रूह के साथ है, बादशाही के साथ है, आसमान के साथ है, खुदा के साथ है, क्योंकि मसीह ने उसके रूहानी गूंगेपन को खत्म कर दिया। और ये बात सच है। हम पहले कुछ और ही होते हैं। हमारा ताल्लुक दुनिया के साथ होता है, हमारा उठना बैठना दुनियावी लोगों के साथ होता है, हमारी जुबान जो कुछ कहती है वो सारी बातें दुनिया से ताल्लुक रखती है, और रूहानी तौर पर हम गूंगे होते हैं।
यानी हमारे मुंह से कोई रूहानी बात नहीं निकलती, कोई कलाम नहीं निकलता, कोई हमारे मुंह से, हमारे होठों से, हमारी जुबान से खुदा के नाम कोई सब नहीं मिल रहे होते। और ऐसे ही हमारी आंखें भी बंद होती हैं, रूहानी आंखें। लेकिन जब यीशु हमें छू लेता है, जब यीशु किसी को छू लेता है, तो फिर रूहानी तौर पर लोग देखने लगते हैं, फिर लोग रूहानी तौर पर बोलने लगते हैं। जब वो छू लेता है तो ऐसे लोग जो रूहानी बहरे होते हैं, उनका बहरापन खत्म हो जाता है और वो खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा का कलाम उनके अंदर ठहरता है। और जब ठहरता है तो वो बाबरकत होते हैं, जब वो ठहरता है तो वो बाइस से बरकत साबित होते हैं और उनके वसीले से बहुत सारे लोग नसीब पाते हैं। और ये कमाल खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है। आप शक्तियों की बात करें, अब बात समझ रहे? पहले हम रूहानी तौर पर मुर्दे होते हैं, हम गूंगे और बहरे भी होते हैं, हम अंधे भी होते हैं रूहानी तौर पर। पहले तो हमने जिस्मानी अंधेपन की बात की है, जिस्मानी गूंगेपन की बात की, लेकिन अब हम रूहानी अंधेपन की, बहरेपन की और गूंगेपन की बात कर रहे हैं। हर वो शख्स जिसे यीशु मसीह बुलाता है, वो पहले रूहानी तौर पर अंधा, गूंगा और बहरा, लेकिन जब यीशु मसीह की बातें उसके अंदर उतरती है, उसके कानों के अंदर उतरती है, जब वो यीशु मसीह को, उसकी निजात के काम को देखता है, तो वो रूहानी तौर पर बीना हो जाता है, उसकी रूहानी आंखें खुलती हैं और जो कुछ पहले वो नहीं देखता था वो देखता है। जैसे हम जो खिदमत करने वाले हैं, आप पहले गाते नहीं थे, आप अगर गाते भी थे तो उनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं था। यहाँ खड़े होकर जो मीटिंग लीड करते हैं, कलाम को प्रीच करते हैं, पहले वैसे नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे खादिम जो खुदा के लोग हो गुजरे हैं, वो गवाहियां देते। मैं लास्ट टाइम भी अर्नस्ट माल का जिक्र कर रहा था और वो अपनी गवाही दे रहा, मुख्तलिफ जगहों पर उसने गवाहियां दी और वो कहता है कि मैं पहले गाता था, मैं मज़ारों पर जाके गाता था, मैं कवालियां गाता था, बहुत सारे और लोग। लेकिन जब खुदा का बेटा उन्हें छू लेता है तो फिर उनकी गायकी, उनका बजाना खुदा के लिए होता है। उनका वो सारा जो रूहानी तौर पर वो डेड होते हैं, अंधे और गूंगे और बहरे होते हैं, यीशु जब उन्हें छू लेता है, यीशु जब उन्हें बुला लेता है, तो वो सारी दुनियावी चीजों को खत्म कर देता है और अपनी बातों को जारी करता है। और फिर लोग यीशु मसीह के लिए बजाते और गाते। फिर यीशु मसीह की बातें उनके मुंह से निकलती, क्योंकि पहले वो इस एतबार से, रूहानी एतबार से गूंगे थे। और वी आर वेरी लकी पीपल कि हम पहले रूहानी तौर पर गूंगे थे, बहरे थे और अंधे थे, लेकिन अब हम ना बहरे रहे हैं, ना गूंगे रहे हैं, ना अंधे रहे हैं। अब हम रूहानी चीजें देखते भी हैं, रूहानी बातें बोलते भी हैं और रूहानी बातें हम सुनते भी हैं। और ये सारा कमाल किसका है? खुदा के बेटे यीशु का है। वो है तो ये सारी चीजें हैं। जब हमारी लाइफ में नहीं था तो ये सारी चीजें नहीं थी। और यहां पर भी मैंने पढ़ा है कि एक अंधे गूंगे को लाए हैं, जैसे मुझे लाया गया मसीह के पास, जैसे आपको लाया गया। कोई शख्स तो वसीला बनता है ना हमें यीशु मसीह के पास लाने का। सारे काम तो खुद ही खुदा करता है, लेकिन खुदा इंसानों को वसीला बनाता है। और फिर मैं जैसे पहले रूहानी एतबार से डेड था, मुर्दा था, मुझे भी किसी शख्स को खुदा ने वसीला बनाकर चुना और छुआ और इन चीजों को खत्म किया। और फिर मैं अपनी इस ड्यूटी को कितना निभाता हूं, या हम कितना करते हैं कामों। जो लोग बीमारों को लाते हैं, दरखास्तें लेकर आते हैं, वो किसी हद तक अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं, यीशु मसीह के काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हमें सोचने की, फिक्र करने की जरूरत है कि हम खुद तो रूहानी तौर पर जिलाए गए हैं, लेकिन हम आगे और जो मुर्दा है जिनको हम जानते हैं। अगर मैं गाता बजाता हूं तो बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूं जो दुनियावी चीजें कर रहे हैं, दुनियावी गीत गाने गाते हैं, क्या मैं उन्हें यीशु के पास लेके आने का सबब बन रहा हूं? मैं मुर्दा था, मैं जी उठा हूं रूहानी तौर पर।
मैं किसी को जानता हूं, वो कलाम से दूर है, खुदा से दूर है, मैं उसे कितना बताता हूं यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, वो एक शख्स को जो गूंगा और अंधा है यीशु के पास लाए, और लाने का मकसद ये था ताकि वो उसे शिफा दे। और हमें भी ये करना है। हम भी उन लोगों को जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से भी, जिनको शिफा की जरूरत है, जिनको शिफा की जरूरत है, जो बीमार उन्हें भी लाए यीशु मसीह के पास, और जो रूहानी तौर पर बीमार हैं उन्हें भी लेकर आने का जिम्मा मेरा और आपका ही है, ताकि वो आए और खुदा यीशु मसीह उन्हें जिस्मानी शिफा की अगर जरूरत है तो वो भी दे, और खसूसन यीशु मसीह उन्हें रूहानी तौर पर जिंदा करे। वो इसी घर से लाए जाए ताकि जो चीजें उनके अंदर नहीं है वो यीशु के पास जब लाए जाए तो यीशु उन्हें छू ले, ताकि वो चीजें खत्म हो जाए और उनके अंदर मसीह जिंदा हो जाए। मसीह का कलाम, मसीह की बातें जो है जिंदा हो। और जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी थी कि फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता, इल्जाम लाने लगे। बहुत सारी बातें वो यीशु के बारे में पहले वो जानते थे, यीशु को हरा नहीं पाए, गलत साबित नहीं कर पाए, तो फिर ये अजीब सा और बड़ा गंदा सा इल्जाम जो है वो यीशु मसीह पर लगाने लगे। ये तो बदरूहों के सरदार यानी शैतान की मदद से ही काम करता है, इसके अंदर अपना इख्तियार नहीं। और यीशु ने जवाब भी दिया, यीशु ने कहा कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। शैतान अगर खुद ही अपनी तस्वीरों को, बदरूहों को निकालने लग जाए तो वो तो जल्दी खत्म हो जाए, उसकी बादशाहत जो है, उसकी सल्तनत जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि खुद ही अपने हाथों से अपनी बदरूहों को निकालने लग जाए। वो तो बेचने वाला है, यीशु कहता है वही बेचने वाला है, वो कैसे निकाल सकता है। सो जानते हैं कि पहले भी यीशु मसीह पर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते थे, और मौजूदा दौर में भी यीशु मसीह पर जो मुखालिफ मसीह है, जो उसका इनकार करते हैं, उस पर कई तरह के इल्जाम लगाते हैं। लेकिन हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह सच्चा और खरा है, और उसके अंदर कुव्वत है, कुदरत है, और ऐसी कुव्वत और ऐसी कुदरत कि वो हर एक काम कर सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो यीशु कर सकता है। आमीन। बहुत सारे लोग नबूवत का दावा करते हैं, नबी का दावा करते हैं, नबी कहते हैं अपने आप को, पास में कईयों ने कहा है, लेकिन उनकी कोई नबूवत नजर नहीं आती, एक भी नबूवत नहीं है। नबी, अगर कोई नबी है तो उसकी नबूवत कहाँ है? अगर कोई नबी है तो उसके मौजज़ात कहाँ है? लेकिन यीशु वो शख्सियत है, वो पर्सनैलिटी है, जो कोई काम नहीं कर सकता वो यीशु कर सकता है। यीशु नबूवतों से भरा हुआ है, यीशु मौजज़ात से भरा हुआ है, यीशु की मानित कोई भी नहीं है। आमीन। आज हम खड़े हो जाए और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम की तारीफ करें, उसके बेटे की तारीफ करें। हम कुछ देर दुआ में गुजारेंगे।